Air Marshal Salim Arshad, President Royal Aeronautical Society, Pakistan Division, distinguished ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I am Adiba Ghazal. I am a member of Royal Aeronautical Society and I also represent Women Innovation Group for the division. Before we start today, I would request you all to please keep your microphones on mute until the QA session, and during the QA session you can unmute yourself and ask the question from the speaker one by one. I welcome you all for our monthly lecture titled Situational Awareness Through Information Processing, which will be delivered by Ms. Samra Azhar. Samra Azhar is amongst the pioneers of AirBlue, having almost 17 years of experience. Samra started from the scratch and climbed over the ladder. She possesses over a decade-long experience in the area of cabin safety through her various roles as a cabin safety trainer, crew resource management facilitator, leading cabin crew member, and cabin safety manager at AirBlue. She has vast experience in complex emergency procedure writing and development of regulatory safety publications. She also has a deep insight into soft and interpersonal skill training. In the session, the speaker will talk about how to enhance the ability of self-awareness, what are the limitations and strengths. She'll also discuss the importance of situational awareness and why is it regarded as a must-have skill in the cabin crew profession. I would now request Ms. Samra Azhar to deliver her lecture. Thank you, Miss Adiba. It is an extreme honor for me to be addressing such a distinguished audience. Um, it is. I would say I would like to start with a thank with Royal Aeronautical Society to giving me this session opportunity with the audience. I had very little knowledge of the society, I must say, before Mr. Varsti contacted me, and I did my research before entering, and it's a pleasure indeed. Um, I have been doing what you shared. Thank you very much. You shared all of that. I have been doing that, and through the years of my experience, I have learned that wherever there's human, uh, there's a problem. I'm sorry, I'm saying this, but I am a human, but I see and the first person I see making the problem is me. Daily, I come across situations, I come across limitations I have within me, which tell me that it's happening because I'm a human. There are, I am blessed with a mind. इस पूरी दुनिया में किसी जानदार के पास ऐसा दिमाग नहीं है जैसा humans के पास है, and um, every passing moment there are situations, there are opportunities we are learning, and every passing moment we are making mistakes. So this is one of my favorite topic. It used to be a separate topic, situational awareness हम अलग से discuss करते थे, information processing अलग से, but then I felt the need to combining the both in my sessions in AirBlue as well, and otherwise. So I picked this topic for this session as well. It is very, very effective for our own self-recognition. I speak a lot on self-recognition, and the first person I start with is myself. Thank you very much for this opportunity. I will move on. One little thing. This is going to be an interactive session, so I would be requesting my audience to please unmute whenever I request. Is that okay, Adiba? Yes, sure. It is totally acceptable. Okay. Second thing, I request my audience to bring a notebook and pen, क्योंकि आपकी interaction जो होगी मुझे आपसे लिखाई में भी चाहिए, मतलब notes आपके पास ही रहेंगे, and I would be requesting you to take notes. I'll move ahead. Situational awareness है क्या? When we इधर अभी मैं देखा बेल बज रही है, मिस कॉल आ रही है मुझे. whenever we look at universal systems, खुदाई निज़ाम में तो कोई खराबी नहीं है. वो नेचर जिस भी तरह की है हमें अच्छी ही लगती है. झाड़ियों का उल्टा सीधा होना, पहाड़ों का disfigured होना, and it has its own beauty. So there's no question about it. When we look at other
लिविंग बीइंग्स जैसे कि जानवर, पौधे, उनका तो मासूम सा ज़हन है और वो सिर्फ़ और एक एक सर्वाइवल के ऊपर अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। हम वो तख्लीक हैं जिनके पास दिमाग है और उनके पास सोचने की सलाहियत है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमारी सिचुएशनल अवेयरनेस डेवलप करते हैं। किसी भी सिचुएशनल अवेयरनेस को आसान अल्फाज में डिस्क्राइब करोगे, किसी भी हालात, एक होने वाले इंसिडेंट, एक्सीडेंट या अकरेंस को परसीव करके, देखकर उसकी अपने ज़हन में एक पिक्चर डेवलप करना आपकी अपनी सिचुएशनल अवेयरनेस है। होती कैसे है? हम सबका दिमाग एक सीपीयू है. It is like a computer central processing unit. We all have been studying from grade 1 or prep 1 class that we have computers in our homes and offices. There's an input device, there's a processing device, and there's an output device. So yeah, I have an input device. For example, मच्छर आन के मुझे काट जाता है. So that's an input. I would process that input in my brain, and it will become it will create awareness. Okay, ये क्या हुआ है मेरे साथ? ठीक है, मुझे मच्छर काट गया है, ये मुझे कैसे पता चला? यहाँ पे थोड़ा सा बम्प हो गया है. Okay, irritation भी हो रही है. Now this is what I'm doing in my brain to process, and there's an output that I raise my hand and scratch my affected area. So the process part where I'm giving myself these triggers and examples कि ये हुआ क्या है, ये मुझे क्या sensation feel हो रही है. This is situational awareness. It develops during the process part. And information सारी की सारी जो मेरे input से, मेरे previous experience से जो मुझे मिली है और मेरे sensory system से, यानी कि मेरे एहसास skin पे हिस होने की वजह से, वो सारी situation awareness मेरे दिमाग के अंदर develop करती है. अब हम डायरेक्ट इसके डेफिनेशन के बाद एक खास बैरियर के ऊपर बात करेंगे. ये इसकी डेफिनेशन है जो कि बताती है सिचुएशनल अवेयरनेस या फिर किसी हालात की आगाही, वहाँ के इर्द गिर्द होने वाले इफेक्ट्स, उसमें होने वाले एलिमेंट्स, अनासिर, जो भी, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट. फॉर एग्जांपल कराची में रहने वालों के लिए एक सवाल है मेरा. 3 दिन की हड़ताल के बाद हम जब अपने कामों को जा रहे होते हैं और एक जगह पे ढेर सारे छोटे-छोटे कंकर और पत्थर पड़े होते हैं, ऑडियंस से मेरा सवाल है, आपके ज़हन में पहला ख़्याल क्या आता है? Remove from the road. ओके, वेरी गुड, थैंक यू. एनीबॉडी एल्स? कि यहाँ क्या हुआ होगा? पहला ख्याल तो यही आता है कि कोई नॉन नॉर्मल एक्टिविटी हुई होगी जो ये सारा डेब्री पड़ा हुआ है. नॉन नॉर्मल एक्टिविटी, एग्जैक्टली. हम सोचते हैं ओके, यहाँ पे पथराव हुआ है, रास्ते में जा रहे हैं गाड़ी चलाते हुए, एकदम से बॉटल नेक आता है, गाड़ियां रुक रही हैं, आगे जाके बढ़ के देखते हैं, गुजरते हुए सड़क पे ढेर सारा कांच पड़ा है. पहला ख्याल यही आता है, ओके कांच पड़ा है, गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं, थोड़ा सा खून पड़ा है, यस एक्सीडेंट हुआ है, आई होप एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी इज ओके नाउ. तो ये वो हमारी अवेयरनेस हम डेवलप करते हैं छोटी छोटी चीज पे. ये हम इनवॉलेंटरली कर रहे हैं, ये हम बाय डिफॉल्ट कर रहे हैं. वी आर, लाइक आई ऑलवेज से, वी आर प्रोग्राम्ड दिस वे. हमें कभी भी ये ख्याल नहीं आएगा कि किसी ने कांच तोड़ के जान के डाल दिया है और किसी को कांच तोड़ने के दौरान चोट लग गई है, सैबोटाज करने के लिए डाल दिया गया है. हम पहला ख्याल ये सोचेंगे ओके एक्सीडेंट हुआ है, आई होप एवरीबॉडी इज ओके. सो ये हम इनवॉलंटरी ओपिनियंस डेवलप करते चले जाते हैं, और उन ओपिनियंस को या उस अवेयरनेस या उस पिक्चर को जो हम अपने जहन पे पेंट करते हैं, उस पिक्चर को कहते हैं उस सिचुएशन की, उस इंसान के अंदर जो अवेयरनेस पैदा हुई है, वो उसके हिसाब से उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस है. इस फिनोमेना से हम बहुत फायदा जरूर उठाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जहाज पे मैं फ्लाइट कर रही हूँ, जद्दा की फ्लाइट कर रही हूँ, वापसी पे लेकर आते हैं हम उम्रा के पैसेंजर्स को. उनमें ज्यादातर ज़ईफ और हम्बल लोग होते हैं, वो लोग जो कि सारी उम्र
ढेर सारे पैसे जमा करते हैं, थोड़े थोड़े रखते जाते हैं कि जब उम्र का आखिरी हिस्सा आएगा तो हम इस फर्ज को अंजाम जरूर देंगे। वहां से वापस आने के लिए वो फ्लाइट चलती है सवेरे वहां जद्दा के 5 बजे। वो पैसेंजर्स जब हमारे पास पहुंचते हैं सुबह के 4 बजे, वो उसी वक्त नहीं आए होते। वो आए होते हैं दोपहर 12 बजे के, बैठे होते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो होटल का एक दिन का और किराया बर्दाश्त करें। वो चेकआउट होके उन सारे आवर्स के लिए आकर एयरपोर्ट पे बैठ जाते हैं और उसके बाद वो वेट कर रहे होते हैं। पानी बहुत महंगा है वहां पे, खाना महंगा है, वो नहीं खरीद पाते। वो वेट कर रहे होते हैं कि हम जब जहाज पे जाएंगे तो हमें सर्विस होगी, हमें कुछ खाने को पानी मिलेगा। तो बहुत बहुत इनिशियली जब एयरब्लू ने जद्दा की फ्लाइट स्टार्ट की तो बहुत ज़्यादा cabin crew का फीडबैक आया कि हम नहीं बैठ पाते, बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वेस्ट होती है। तो हमने पानी का वो स्टैंडर्ड भी बढ़ा दिया। मगर cabin crew की वो कंप्लेन या फीडबैक एक रही कि हमें एक क्रू एक्स्ट्रा दिया जाए। अब हम लो कॉस्ट एयरलाइन है, हम एक क्रू एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते थे। तो फर्दर फिर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की हमने। हमने पता किया कि ये क्या होता है जो ये स्पेसिफिक जेंट्री या क्लाइंटेल हमारे पास जब आती है, तो ये लोग इस तरह रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि नेचुरली इतना एब्नॉर्मली कोई रिक्वेस्ट नहीं करता। तो हमें ये सारे फैक्ट्स जो मैंने आपको भी बताया वो पता चले और हमारी बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस डेवलप हुई। हमने सर्विस प्रोसीजर उस हिसाब से चेंज किया और जद्दा पे डिफरेंट प्रोसीजर अप्लाई किया व्हिच एक्चुअली हेल्प्ड पीपल एंड कैबिन क्रू के उनको एड हॉकिज्म बहुत ज्यादा था, वो खत्म हो गया। हमने एक सर्विस ही इंट्रोड्यूस करा दी जो कि सिर्फ और सिर्फ वाटर सर्विस थी। तो ये अवेयरनेस मेरे पास जब तक नहीं थी मैं ये काम नहीं कर पाई। और उसके लिए मैंने खुद भी जाके वो फ्लाइट करके देखा और यस वाकई में ऐसा था कि वो रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा थी। तो सोचें कि किसी की क्या पीछे कहानी चली आ रही है जो कि मुझे पता ही नहीं है और मैं अपनी मौजूदा एलिमेंट्स के साथ रहते हुए एक फैसला ले लूं कि मैंने पानी की सर्विस करनी है या नहीं करनी, मेरे पास कितनी रिसोर्स है, तो वो एक जिसे कहेंगे मुकम्मल फैसला नहीं होगा। तो जब हमें ये बात पता चली तो हमने अपने तमाम प्रोसीजर्स और सर्विस प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर दिया। So what did we do? We re-engineered the entire procedure. We restructured the entire plan and standard of the water service. पूरी स्ट्रैटेजी हमने चेंज कर दी उस स्पेसिफिक फ्लाइट के लिए कि वो जो आज़मीन हज या लोग आते हैं जो भूखे और प्यासे आते हैं और वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं तो उनको हम ऐसे केटर करेंगे। सो ये एलिमेंट पॉजिटिवली ऐसे इस्तेमाल किया। ये एक वीडियो मैं प्ले करूंगी, इसमें ज्यादा देखने और परसीव करने का आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको देख के अंडरस्टैंड करें और मुझे बताएं कि क्या हुआ। आवाज आप तक शायद ना पहुंचे मगर इसमें देख के मुझे बताइए कि आपको क्या नजर आया और आपने क्या समझा। मैं ऑडियंस रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने माइक अनम्यूट करके और मुझे थोड़ा सा इनपुट दें कि क्या हुआ है जो आपने देखा है। Investigation in process. Okay, thank you very much. Investigation of what? I think murder. Murder investigation. Very good. और फिर later part में क्या हुआ? Someone is arrested. Someone is arrested due to any इसमें बताया गया कि वो ये जो डिटेक्टिव खड़े हैं उन्होंने कहा कि जो आप पौधा लगाने की बात कर रही हैं कत्ल के वक्त, वो पौधा इस मौसम में नहीं लगाया जाता, तो इस वजह से मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ। तो यस ये हुआ। और कोई अपना इनपुट देना चाहेंगे?
यस। पीछे जो लोग खड़े हुए हैं उनके कॉस्ट्यूम भी चेंज हुए हैं और जो हाथ में पकड़े हुए थे टूल्स वो भी चेंज है। वो भी चेंज हुए हैं। और किसी ने कुछ देखा? थैंक यू वेरी मच। सॉरी आई डिडंट really catch that who was talking. मेरे ख्याल में वॉल क्लॉक भी चेंज हुई है नीचे जो बॉडी के साथ रखी हुई है, और Alright, आई एम नॉट श्योर कि डेड बॉडी भी शायद चेंज हुई है, बट आई एम नॉट okay, श्योर। you're not sure. All right. Anybody else? किसी रॉन्ग डिसीजन को पनिश कर रहे हैं। Okay, that you perceived. Thank you very much. किसी को incorrect convict कर दिया गया है। Anybody else? Ladies and gentlemen, मैं बहुत ज्यादा लोगों को बोलने पे रिक्वेस्ट करती हूँ अपने क्लासरूम सेशन में भी। I'll move ahead with given responses. Thank you very much, everybody, for your response. I'm going to play the remaining part of the video. This is actually an ad, a public service message somebody put on YouTube, and I acquired it from there. ये basically ये बताता है, ये हमें अपनी ही limitation बताता है, जिसके बारे में मैं बात भी कर रही थी कि हम जब एक चीज के लिए देख रहे हैं तो दूसरी चीज कैसे आसानी से मिस कर देते हैं। हमारा दिमाग, हम बहुत अक्सर जगहों पे आपने सुना होगा, नोट किया होगा कि ओ माय गॉड, मैं तो मल्टीटास्क कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अक्सर लोगों से सुना होगा, oh I'm pretty good at multitasking. That is not true. Intelligence जहाँ से जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जहाँ से इंटेलिजेंस अक्वायर होती है, जहाँ से हम इंफॉर्मेशन को लेकर प्रोसेस करते हैं, वो जो प्रोसेसिंग का अमल है, एक टास्क के प्रोसेसिंग और दूसरे टास्क के प्रोसेसिंग का अमल, वो अपनी प्रैक्टिस, इन्हांस, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस की वजह से लोग एक अमल और दूसरे अमल के बीच में इतनी तेजी से स्विच करते हैं कि उन्हें महसूस होता है या देखने वालों को लगता है कि वो मल्टीटास्क कर रहे हैं। बेसिकली एज अ ह्यूमन बीइंग हम एक वक्त में एक से ज्यादा टास्क नहीं कर सकते। द स्विचिंग ऑफ टास्क इज सो रैपिड एंड फास्ट, वी एक्चुअली थिंक दैट वी आर मल्टीटास्किंग, and it is not the case. So in case of this video applying on the situation awareness topic, there are almost 4 to 5 inputs I received, where 2 inputs were pretty close. जो लोग पीछे की चीजें देख रहे थे कि क्या प्रॉप्स चेंज हुए हैं, क्या चीजें चेंज हुई, मर्डर वेपन, मर्डर विक्टिम, वो चेंज हुए, वो उन्होंने जल्दी से एक्वायर कर लिया। ओके, एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ओह व्हाट एल्स, ये भी हो रहा है, बिकॉज दे एक्वायर्ड इट, they started to look at different things. Whereas people who are just focusing on मेरी तरह के लोग जो कि मर्डर मिस्ट्रीज बहुत शौक से देखते हैं नेटफ्लिक्स पे, वो सब कुछ यही देख रहे होंगे कि ओके एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, राइट, एंड आवाज नहीं आ रही, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, ये क्या हुआ होगा। सो हम सब, कहने का मतलब ये है कि आप एक स्टेडियम में लोगों को बिठा दें और एक मैच चल रहा हो, 30,000 की ऑडियंस हो, तो 30,000 के 30,000 लोग एक मुख्तलिफ मैच देख के उस स्टेडियम से निकलेंगे। कोई भी एक जैसी राय वाले 2 लोग नहीं होंगे। ये हम ह्यूमंस करते हैं। ये हम ह्यूमंस उस वक्त करते हैं जब इंसिडेंट रिपोर्टिंग होती है, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। वो ये कहते हैं कि ओके हाँ, मैंने ये होते हुए देखा। तो ज़रूरी नहीं वो एक्चुअली ये हुआ। ये हम ह्यूमंस की सबसे बड़ी लिमिटेशंस है, जो कि
by and large, in every module of which I practice, the modules of situational awareness and information processing, communication, fitness and health, decision making, anything, just name it. We have this limitation actively working with us alongside whenever we are talking, making decisions, making a discussion between a passenger and a crew, meal shortage on the aircraft. How do we हैंडल इट? आप लोग वाकिफ हैं क्या कि कभी फ्लाइट्स पे पैसेंजर ज्यादा और मील कम होता है? और उस सूरत में 4 का जो क्रू है वो करता क्या है? सो वो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो मैं दे सकती हूँ, और हम अपने क्रू को रिफाइन करते हैं बार बार इन प्रोसेसेस से गुजार के कि अगर ऐसा हो जाए 34,000 फीट पे तुम्हारे पास खाना नहीं है तो तुमने क्या करना है? सो या देयर आर एक्चुअली एग्जांपल्स जो कि लड़कियों ने एग्जाम्पलरी डिसीजंस लिए हैं, जो मैं अपने सेशंस में भी बताती हूँ, और मैं एक यहाँ पर कोट भी करूंगी स्पेसिफिक टू दिस. When we used to go to the UK, there was a huge fault which was done by the catering we used to acquire from UK. हम वहां से खाना लिया करते थे, सिर्फ हॉट मील, क्योंकि जो जहाज इस्लामाबाद से यूके जाता था वो ही वापस आता था, तो हम खाना वहां से लेकर नहीं चढ़ सकते थे क्योंकि वो एक्सपायर हो जाता. तो हॉट मील हम वहां से अपलिफ्ट कराया करते थे. हॉट मील अपलिफ्ट हुआ, फ्लाइट चल पड़ी. 340 एयरक्राफ्ट था उस वक्त एयरब्लू के पास, और 340 ही का लोड था अंदर, फुल फ्लाइट. फ्लाइट चल पड़ी, सर्विस स्टार्ट की. बड़ी सीनियर हमारी एक लीडिंग कैबिन क्रू उस पे थी, अब नहीं है हमारे साथ. फ्लाइट चल पड़ी, सर्विस स्टार्ट हुई, लोगों ने खानों के रैपर खोले और लोग उबकाई लेने लगे. जब लड़कियों ने वापस रिट्रीट किया और उन्होंने पैकेट को देखा तो उस पे पोर्क लिखा हुआ था, और मिस्टेकनली उस एयरक्राफ्ट पर यूके से पोर्क की डिश अपलिफ्ट हो गई, और उस पे इतना विजिबल नहीं लिखा हुआ था, छोटा सा लिखा हुआ था, जो कि क्रू ने फिर रिपोर्ट किया. इमेजिन 340 मील्स डिस्ट्रॉयड इन अ 9-hour फ्लाइट. एंड इट वाज हाउ शी मैनेज्ड विद द मील प्रीवियसली केप्ट. उन्होंने उसको रीहीट नहीं किया, लोगों से माजरत कैसे की, हैंडल कैसे की. आई एक्चुअली रिसीव्ड कमेंट कार्ड्स फ्रॉम दैट फ्लाइट which stated कि आपके क्रू ने हमें कैसे हैंडल किया, एंड वी आर रियली इम्प्रेस्ड विद योर सर्विस. आई नेवर फॉरगेट दैट इंसिडेंट. एंड उस खातून की, उनका एक्सपीरियंस लेडी थी, उनका एक्सपीरियंस, उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस रियली वर्कड ऑन दैट. Here I display a picture in front of you. I'm going to change the screen in 30 seconds. आप अपना नोटबुक और पेन सामने रख लीजिएगा. You have 30 more seconds to answer these questions on your notebook, please. There are 4 peoples, 1 female and 3 males. Yes, please. Carry on. The objects lying on the floors are a tire, a man, and a spring, I think. Okay. गाड़ी का रंग बता सकेंगे Blue दोनों? and red. All right, blue and red. White and red. Okay, we have a white and red here. Anybody else? Okay, I'm sorry, आप continue कर रहे थे. Number 630 LX. Oh, specific to
gentlemen. They always get this one right. Anybody else anybody who differs with, I'm sorry, I really didn't get your name. The gentleman who responded, I'm sorry, I didn't get you. My name is Safwan Ahmed. Mr. Ahmed, thank you very much. Anybody who differs with Mr. Ahmed? ऑब्जेक्ट्स में मैम एक वो भी था, बम्पर भी था। अच्छा, ओके, बम्पर भी था। मिस ने तो गाड़ियों का रंग कहा है कि व्हाइट और रेड था। सर कहते हैं कि रेड और ब्लू था। Yeah, and the man was, I guess, suffering from the broken leg or a knee injury. He was lying on the floor. That's why. अच्छा, एल्बो इंजरी वाले हैं कोई? I think it was a head injury. Oh, it was a head injury, and there was a knee injury, and okay. So basically, what happened here is that we saw one incident in a form of picture, and we acquire different information. आप लोगों का सोच इन्फ्लुएंस हुआ किसी भी वजह से। ब्लू कार की मैं एग्जांपल वापस डिस्प्ले करती हूँ। मिस्टर अहमद, आपने ब्लू कार बताया था। Yes. आप अब देखिए, ये गाड़ी ब्लू नहीं है। Actually, number plate was light blue. Exactly. उसका इंटीरियर ब्लू दिखाया गया, नंबर प्लेट में ब्लू है। और you know what happened? You did not have the answer of this question correct answer of this question, partially correct. And since you had one answer correct, you thought that you had the other correct. And आपका जो खाली areas थे ना ब्रेन में जो डेवलप हुए थे आफ्टर यू रेड दिस क्वेश्चन, वो आपने इस रंग से फिल कर लिए थे. So you thought, and this is not the first time, surprisingly, that this response has surfaced, that people say there was a blue car, and वो हमने किया क्या कि आपको तो मौका भी नहीं दिया ना पिक्चर अक्वायर करने का. इम्तिहान का जो पर्चा इस पिक्चर के बाद आता है वो भी बाद में बताया. पहले बताया होता तो आपका रिस्पॉन्सेज बिल्कुल मुख्तलिफ होते और ज्यादा एक्यूरेट होते. तो ये हम नॉर्मली करते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स. जो एक वाकया मैं आपसे कहूँ कि प्लीज मेरे सामने नरेट करो कि उस फ्लाइट पर हुआ क्या क्या था. तो 4 क्रू 4 मुख्तलिफ स्टोरी बताएंगे जिन उस सिचुएशन के जो इंफॉर्मेशन दे हैव नॉट understood or it is missing and it is eliminated out of their memory. They will fill this information with whatever they have और brain उनको options provide करेगा. Okay, वहाँ पे ये था, वहाँ पे ये था, तो okay यही हुआ होगा. And then there comes another witness who says कि okay ये नहीं. So ये हम normally करते हैं. Like I said, whenever there's a human involved, there are limitations. So हुआ क्या है, इस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आपने लोगों ने की है. थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. सबसे पहले आपने ना इस पिक्चर को देख के रिकग्निशन डेवलप करना शुरू की. उसके बाद उसको थोड़ी जब क्वेश्चनर डिस्प्ले हुआ, आपने उसको कॉन्टेक्स्ट में डालना शुरू किया और एक अवेयरनेस आपके जहनों में डेवलप हुई. बेसिकली हुआ क्या, टाइम की कमी की वजह से इस रिकग्निशन प्रोसेस में पजल के सारे पीसेस आपको नहीं मिले. कॉन्टेक्स्ट आपका इनकम्प्लीट डेवलप हुआ, तो नेचुरली सिचुएशनल अवेयरनेस जो बन के आई वो भी इनकम्प्लीट थी और आप बाउंड थे आंसर देने के. तो आपने जो whatever information you had available, you gave me an answer. Okay, I'm going to really pick an odd member from audience. Mr. Zishan Hussain, if you can hear me, can you describe this picture to me? मैम इट्स लाइक कि ये या तो थेफ्ट है कि वो उनके पीछे जा रहे हैं. कुछ चुरा के जा रहा है. जी मैम, क्योंकि पिक्चर थोड़ी ब्लरी सी है तो ये शो करिए कि जैसे स्पीड में बात आ रहे हैं. अच्छा जी, अच्छा जी.
क्योंकि पीछे जो तमाम सीनरी है वो ब्लर्ड है। और कोई इनपुट देंगे इस पिक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए? मिस्टर ब्रिज की कादिर, सॉरी, जी जी बोलिए। ब्रिज की हाइट कम है और गाड़ी का जो केबिन साइज है वो ज्यादा है। तो बिल्कुल सही। तो ये जो आगे साहब बैठे जो कार्गो लेकर जा रहे हैं, उनको नहीं दिख रहा होगा क्या ये? नहीं जी, इनको अपनी सिचुएशन का अंदाजा नहीं है कि व्हाट इज लाइक हेडिंग टू। यस यस, एंड व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड इट? Maybe he is fatigued or might be some human related issues. ओके, नो साइन बोर्ड। नो साइन Yes. बोर्ड, ओके। I'm having getting a chat message. Assalamualaikum. Okay, yeah, no signboard and human limitation, tired, maybe travel रोज जिस रास्ते से जाते हैं वहां से ये तो साहब नहीं जा रहे आज, ये तो पक्का पता चल गया, वो शायद नौकरी का पहला दिन होगा। पीछे क्या हुआ है लाल गाड़ी के साथ? वो तो काफी एरिया दिख रहा है। She is following her and maybe lead to accident. Yes, it will lead to an accident and in no time जब गालिबन ये पिक्चर खींची गई उसके अगले सेकंड में ये एक्सीडेंट हो गया होगा। There is a complete loss of situational awareness here. The person who is ahead has no awareness of what is going to happen and the person who is behind him has equally no awareness here. हाँ, हमारी एक तो हम सिचुएशनल अवेयरनेस डेवलप करते हैं और हम जैसे जैसे उसको इन्हांस करते जाते हैं वैसे वैसे उसमें आने वाली रुकावटें भी साथ साथ बढ़ती जाती हैं। जैसे इट इज एग्जाम्पल इसकी मैं ऐसे दूंगी कि तेज हवा में आगे की तरफ बढ़ना, जैसे जैसे आप बढ़ने की कोशिश बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको ड्रैग पड़ता जाएगा, आगे से ऑपोजिट हवा लगती जाएगी और आपको मुश्किल पेश आती जाएगी। या रैंप के ऊपर चढ़ना, भागेंगे तो ज़्यादा मुश्किल से आगे ऊपर चढ़ सकेंगे और स्लो चढ़ेंगे तो भी ड्रैग होगा, मुश्किल होगी पर कम। जैसे-जैसे आप अपनी सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ाते हैं या बढ़ती है आपके एक्सपीरियंस, आपकी ट्रेनिंग से आपके इर्द-गिर्द के एलिमेंट्स से, वैसे-वैसे आपकी बैरियर भी बढ़ती है। इसमें आवाज़ का कोई अमल दखल नहीं है, ये सिर्फ़ विज़ुअल है। इस एक्सरसाइज को जब हम लेआउट करते हैं, इसको कुछ ऐसे करते हैं कि पहले पिक्चर रूम की दिखाकर वहाँ पर वीडियो पॉज़ कर दी जाती है और लोगों से पूछा जाता है क्या दिख रहा है? और उसके बाद इसको मज़ीद रन किया जाता है और फिर उनको बताया जाता है कि ये नहीं एक्चुअली ये ऐसे था। तो योर माइंड प्रीटी डिसीविंग जिस जो आज तक आपने जुमला सुना है ना, सीइंग इज़ बिलीविंग, हम एविएशन में इसको बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते। सीइंग इज़ नेवर बिलीविंग। There's one example which is on top of my head is I was once we landed at Islamabad Old Airport and there was वहाँ पर क्या होता था जब एयरक्राफ्ट को रावल लाउंज के आगे पार्क किया जाता था तो उसको पहले से ही टैक्सी वे के ऊपर ही इंजन्स बंद कराए जाते थे और टो करा जाता था और इंजन्स के साथ रावल लाउंज पे के सामने नहीं पार्क किया जाता था। तो हम शॉर्ट ऑफ पार्किंग पे हम एयरक्राफ्ट रोक कर यूजुअली इंजन्स रन ऑफ किए जाते थे और पायलट्स हमें पहले से बता देते थे, हम पैसेंजर्स को बता देते थे। समटाइम्स पायलट भूल जाते थे। तो एक दफ़ा ऐसा ही हुआ, मैं अपनी फ्लाइट पे बैठी हुई थी फ्रंट L1 यानी कि जिस डोर से आप एंटर होते हैं, उस डोर पे मेरी ज़िम्मेदारी थी, मैं वहाँ बैठी हुई थी और सर झुका के बैठी थी, थकी हुई थी।
और सोच रही थी अब एयरक्राफ्ट स्लो स्लो मूव कर रहा है, अब हम पार्क हो जाएंगे, मुझे क्या क्या काम करने हैं। अम, ये होते में अचानक से मैंने देखा कि एयरक्राफ्ट मजीद स्लो हुआ और महसूस किया कि एयरक्राफ्ट मजीद स्लो हुआ और सर उठाया तो तमाम लोग मेरा माइंड क्यों पल्यूट हुआ था क्योंकि यूजुअली हमारी क्लाइंटल यूजुअली मूविंग एयरक्राफ्ट में खड़े होकर बैग निकालने की कोशिश करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ उन्हें माज़रत करके रोकना होता है क्योंकि ये उनके लिए सेफ नहीं है। तो मैंने बाहर देखा तो 2 गाड़ियाँ साथ खड़ी थी, एयरक्राफ्ट आगे की तरफ मूव कर रहा था। मैंने फ़ौरन पब्लिक एड्रेस उठा के अनाउंसमेंट कर दी कि आप तशरीफ़ रखें, जहाज़ पार्क नहीं हुआ है। तमाम लोग आगे 5-6 लोग खड़े मुझे अपने हाथ रोककर मुझे ऐसे देखने लगे कि और उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन जो मैंने रीड किया मुझे आज तक याद है वो थे कि इज शी ओके? अम, फिर मैंने बाहर दोबारा देखा कि ये क्या मुझे ऐसे क्यों दिख रहे हैं? तो वो 2 गाड़ियाँ जिनको मैंने देख के ये परसीव किया कि जहाज़ आगे बढ़ रहा है, वो 2 गाड़ियाँ एक रफ्तार से पीछे की तरफ मूव कर रही थी, जो कि बहुत स्लो थी और मुझे ये महसूस हुआ इल्यूज़न हुई कि जहाज़ आगे बढ़ रहा है, जो कि आपको सिग्नल पे बहुत होती है, जो लोग ड्राइव करते हैं। गाड़ियाँ आगे बढ़ती हैं, आपके साइड लेफ्ट और राइट की गाड़ियाँ स्लोली आगे बढ़ती हैं, आप एकदम ब्रेक पे पैर लगाते हैं कि उप्स! ये मेरी गाड़ी शायद पीछे जा रही है। ये वही इल्यूज़न थी जो मुझे हुई और मैंने अनाउंसमेंट ऑन एयर कर दी और मैं उसके बाद मैं एम्बैरेस हुई और माज़रत करी और लोगों को इजाज़त दी कि वो कर लें। उस ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हुआ एक्चुअली क्या कि मैं प्रीवियस एक्सपीरियंस से इतना पल्यूट हुई हुई थी, इन्फ्लुएंस हुई हुई थी कि मैंने सोचा कि वही एक्सपीरियंस है कि एयरक्राफ्ट शॉर्ट ऑफ बे जो है वो उतर गया है, रुक गया है गेट से पहले और उसके बाद हम थोड़ी देर बाद जाएँगे और हमें उस टाइम पे पैसेंजर को उठने नहीं देना। ये एग्जाम्पल है एक और हमारी सीइंग इज नॉट बिलीविंग की ये इल्यूजन हमारे पास बहुत आती हैं, इंटरनेट पे बहुत अवेलेबल हैं, जो कि ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे मैं आगे रोड पे गाड़ी चलाती हुई जा रही हूँ और आगे जाके आसमान और जमीन मिल रहे हूँ। ऐसा है नहीं पर मुझे ऐसा ही लगता है कि आगे जाके होराइजन जिसे कहते हैं आसमान और जमीन मिल रहे हैं। मेरा ब्रेन मुझे मुस्तकिल इंफॉर्मेशन और पिक्टोरियल से डिसीव करता रहता है। Again an illusion. ऊपर का upper half of the picture tells you there's terrace, people are looking down. और नीचे देखते हैं तो आपको लगता है कि लोग किसी लॉन में खड़े हुए हैं। आज तक मुझे इसमें काले नुक्ते गिनकर कोई नहीं बता सका। कोई कह सकता है इसमें कितने काले नुक्ते हैं? 0. 0 पर दिख रहे हैं? ये मालूम है हमें? ये रैंडमली Focus. चेंज हो रहा है। जी, हमारा ब्रेन कलर फिल कर रहा है। मालूम होते हुए डिसीव हो रहे हैं। Okay, I don't have the answer to that. Can anybody? There's some severe mutation I can see here with the elephant, I believe. 5 legs seems. Seems like, but they aren't. Is this a skull? A boat नो, or a यहाँ mirror. पर मिरर है। A mirror. See, perception. What you perceive, you give as the answer. Okay, I'd like to pick one of you as my audience. If you're not comfortable and मैंने आपका नाम लिया हो तो please excuse जरूर कर सकते हैं. Miss Kinza, will you be my volunteer? Ma'am, did you call my name? Yes, Miss Kinza Gill. Yes, ma'am. ओके मिस किंजा, मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि इस स्लाइड पे जो अल्फाज आपको दिखेंगे उसके अंदर जो रंग भरा हुआ होगा आपने वो ऊंचा हमें बोलना है। क्या आप ये कर सकेंगी? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। आप ये रंग बताएंगी? Ma'am, orange, yeah, blue.
Okay, thank you. Blue. और Red. तेजी से बताइए. Yellow. Okay. Green. Up. Yellow. Or green. Okay. Blue. Red. अब आप मुझे बताएंगे कि आपके आखिरी के 4 रिस्पॉन्स आधे सेकंड के डिले से क्यों आ रहे थे? क्या शायद मैं पढ़ भी रही थी साथ में कलर भी देख रही थी. पहले के 4 रिस्पॉन्स में जो अल्फाज लिखे थे वो रैंडम चीजों के थे और आपको सिर्फ कलर पे फोकस करना पड़ा. दूसरे 4 रिस्पॉन्स में मैंने कलर का ही नाम लिखा और उसके अंदर मुख्तलिफ रंग, रेड में रेड नहीं फिल किया, रेड में ब्लू, ऑरेंज, येलो, ग्रीन फिल कर दिया, जिसकी वजह से आपके लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ और आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मुश्किल हुई. ये इतना सा टास्क, और ये आपके साथ नहीं है, सॉरी, ये हम सब ऐसे हैं, हम सब लोग ऐसे हैं. ये इतना सा टास्क हम नहीं कर सकते विदाउट गिविंग इट अ लिटिल बिट ऑफ पॉज. अगर आपने सब लोगों ने सली मूवी जरूर देखी होगी जिसमें लास्ट में रिएक्शन टाइम की बात करते हैं, वो 32 सेकंड्स का रिएक्शन टाइम ऐड किया जाए तो सिमुलेशन डेवलप की जाए, उसके बाद एयरक्राफ्ट के साथ क्या होता है. जरूर देखिएगा. आई विल नॉट टेक मोर ऑफ योर टाइम इसको बताने में. This is all about reaction time because we need time to process that information to develop your my awareness of situation happening in front of me. ये क्या लिखा हुआ है? चलिए किंजा आप ही बता दें. A bird in the hand. अच्छा जी. It's Dada. हाँ जी बताएं मिस अदीबा. It's a bird in the hand. 2 times there. किंजा द लिखा है. Yes, ma'am. यूजुअली हम ऐसा जुमला नहीं पढ़ते, तो मैंने परसीव कर रखा है कि भाई एक ही बार लिखा होगा. अब परसेप्शन की वीडियो देखिए. So I'm sorry to cut you out. So it's can I speak? This is Yes, Shanu please. Suri. So it's basically your subconscious as well. Okay, what you have in your subconscious mind. So you get it processed with the help of a perception. आप उस तरीके से ही बना रहे हैं. Exactly. Subconscious mind में आपकी वो चीजें पहले से saved होती हैं. Like so maybe. Thank you very much for your valuable input. ये बिल्कुल आपने सही बात की. Subconscious mind, conscious mind, information, experience, training, everything influence your thought process and develops your perception in the given time or in the given situation. तो ये हम सब मुख्तलिफ ही करते हैं और गलतियां तो शायद हम सब एक सी करते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस डेवलप करते हैं वो बहुत मुख्तलिफ होता है. इसकी सॉरी मैं मूवीज की बहुत बात करती हूँ. इस सबकॉन्शियस पे बात आपने की, इस पे बड़ी अच्छी मूवी है बच्चों की, एनिमेटेड इनसाइड आउट, इसको जरूर देखिएगा. वो आपको बहुत आसान से उसमें अल्फाज और एनिमेशन में इस चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं. हुआ ये है कि एक साहब ड्राइव कर रहे हैं, बराबर में गाड़ी आ जाती है. परसीव करने का टाइम जितना उन्हें रिएक्शन टाइम मिला उसमें उन्होंने ये परसीव किया, खातून ड्राइवर हैं, कुछ गुस्से में नजर आ रही हैं, जाने की जगह नहीं है, अपने आप को बचाने के लिए यही करना पड़ेगा. शायद वो ये भी नहीं सोच पाए कि ये एक लेफ्ट हैंड, हम ये जो जिस कंट्री में हम वहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव ज्यादा होती है, और उन्होंने उस गिवन इंफॉर्मेशन को जैसे प्रोसेस किया, अवेयरनेस डेवलप की और इमीडिएट रिएक्ट कर दिया परसेप्शन के ऊपर कि ये मुझे टक्कर मारने वाले हैं. Mr. Farhan, may I request for your input if you don't mind? अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? जी अल्लाह का करम, ठीक हूँ जी. If you don't mind reading this is definitely not a test, just a passage. Amazing. According to a researcher at
Cambridge University. It doesn't matter in what order the letters in a word are. The only important thing is that the first and the last letter be at the right place. The rest can be total mess, and you can still read it without a problem. This is because the human mind does not read every letter by itself, but the words as a whole. Amazing, Hugh. Thank you very much, Mr. Mir. Every single word in this paragraph, with the exception of very few, is written incorrectly. Incorrect spelling likhi hui hai. However, you have been surprisingly and amazingly been able to read it without a stop, without a thinking process. ये इसकी वजह ये है कि आपने रिएक्शन टाइम इसलिए कम लिया क्योंकि सबसे पहले आप इस जबान या लैंग्वेज से वाकिफ हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, और जो इसके अंदर बात लिखी है वही आपका माइंड प्रोसेस कर रहा है कि आपके टेल साइंस, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, एवरीथिंग, देयर इज अ ह्यूज क्लू, and the context of this passage is actually telling you what are we trying to talk about, is that this is the limitation. However, we overcome it because of our previous input and influences. So thank you very much for your input. This is what we do on daily basis, जिसकी वजह से बहुत क्रिटिकल चीजों में हमारी आंख से चीजें भी बच जाती हैं जो गलत लिखी होती हैं, और हम उन्हें पास कर देते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी छोटे छोटे इंसिडेंट और हिस्ट्री, एविएशन हिस्ट्री में बड़े बड़े एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। इस स्लाइड को मैं थोड़ी आगे कर दूंगी। इसको मैं ब्लैंक कर देती हूँ। Maham Rashid, Miss Maham Rashid, can you hear me? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। माहम, आपने ये स्लाइड देख पाई थी जो डिस्प्ले हुई हुई थी? जी जी, जिसमें वर्डिंग्स आगे पीछे थी। जी नहीं नहीं मैम, इसके बाद वाली जो स्लाइड मैं दोबारा कर देती हूँ, कर दूं? या श्योर। ये स्लाइड, ओके। इसमें 11 लेटर्स लिखे थे। आप 11 के 11 बता पाएंगी? ऑलराइट, ट्राई करिए। आई विल ट्राई। ऑडियंस कैन गिव हर इनपुट, ओपन हाउस। बट स्लाइड्स तो अभी शो हो रही है। स्लाइड अभी शो हो रही है, राइट। 9 words हैं, not 11. थैंक यू। यस, 9 वर्ड्स हैं। आप 9 वर्ड्स बताएंगी? जी, या श्योर। या योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी भी शो हो रही है? Okay, no. It was mattress, relax, snore, night, bed, rest, calm. All right. Blanket. One more. Nap. Is that missing? Something is missing? एक शायद मिसिंग है। Snore. ओके, मुझे याद नहीं है सच्ची में। I think हो गए। I think she got them all. Sleep. Relax नहीं शायद बोला था। Relax. There's one input. Yeah, relax and Yeah, relax. Relax was missing. एक एक्यूरेट इनपुट आया था, however मैं डिस्प्ले कर देती हूँ। थैंक यू ऑडियंस फॉर टेलिंग मी। या स्लीप का एक्यूरेट इनपुट था। 9 इसमें होते हैं, 11 मैं हमेशा कहती हूँ लोग 11 पुल कर लेते हैं। स्लाइड डिस्प्ले रह गई, इसकी वजह से हम लकी हो गए। और स्लीप का इनपुट कहीं से आया था विच वाज अगेन एक्यूरेट। मैं इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि जब ये डिस्प्ले करके हम हाइड कर लेते हैं और लोगों से कहते हैं कि आप प्लीज इसको लिख दें, तो वो सबसे पहले जो पहला झूठ मैंने कहा कि
ये 11 अल्फाज लिख कर दें, तो लोग 11 पूरे करके देते हैं। फिर उसके बाद उनसे कहा जाता है कि अब इसको मैं वापस डिस्प्ले कर रही हूँ और आप इनको टैली करें और जो आपके करेक्ट हैं वो क्रॉस कर दें, जो बच जाएँगे वो इनकरेक्ट होंगे। तो बहुत सारी दफ़ा तमाम लोग कहते हैं कि हमने टैली कर लिया, सारे एक्यूरेट हैं हमारे। तो उसके बाद देन आई मेक देम रियलाइज दिस इज द वेरी रीजन द बुलेट डज नॉट हैव नंबर्स, कि आई आस्क देम कि ये 9 या 10 कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, और फिर उनके कीवर्ड्स के अंदर एक आई रिमेम्बर एक एक्सरसाइज में किसी ने आउल भी लिखा था, और वो एडमेंट थे कि मैंने जो डिस्प्ले किया उसमें आउल है। और क्योंकि इट जस्ट जो माइंड गेट्स इन्फ्लुएंस्ड अगेन एंड अगेन, कि रात की बात हो रही है तो शायद आउल की भी बात हो रही होगी, पिलो की भी बात हो रही होगी, मगर पिलो इसमें नहीं लिखा हुआ। सो ये वो एक्सरसाइज मुझे अगेन बताती है कि मेरे क्या लिमिटेशंस हैं, वो क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से मेरी सिचुएशन की एक्वायर करने की लिमिटेशन एक्सक्यूज एक्वायर करने की सलाहियत जो है वो खत्म हो जाती है। अगर मैं एक बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में जब जाऊँ जो कि पहले भी मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, ये मतलब नहीं कि मैं उसमें भी अच्छा परफॉर्म करूँ। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मेरी उस वक़्त की अवेयरनेस, उस वक़्त की सलाहियत को इन्फ्लुएंस करते हैं। हाई वर्कलोड, ऐसी फ्लाइट है जिसमें मैंने सर्विस देर से स्टार्ट करी है बिकॉज़ ऑफ वेदर मे बी। तो अब फ्लाइट लैंड होने से या डिसेंट स्टार्ट होने से पहले मैंने ढेर सारी सर्विस करनी है, लोगों को हर चीज़ प्रोवाइड करनी है, और डिसेंट से पहले-पहले सब कुछ रिट्रैक्ट भी करना है ताकि सेफ्टी के साथ लैंडिंग हो जाए। मेरा तो वर्कलोड बढ़ जाएगा। तो मैंने उसमें कैसे परफॉर्म करना है। अगेन डिस्ट्रैक्शन की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, हम एयरक्राफ्ट कॉकपिट में जाते हैं, हमें ट्रेन ऐसे किया जाता है। हम कॉकपिट के अंदर एंटर होते हैं, पीछे दरवाजा फौरी बंद करने के बाद पहले 5 सेकंड ऑब्जर्व करना होता है। दोनों हेडसेट पे नीचे बात तो नहीं कर रहा एक इंसान, हेडसेट पे दोनों आपस में बात तो नहीं कर रहे बिकॉज़ दोनों सामने देख रहे होंगे या आपस में बात कर रहे होंगे। तो मुझे ये ट्रेन किया गया है कि मैं अंदर जाके डिस्ट्रैक्शन ना बनूं, क्योंकि फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब। लैक ऑफ कम्युनिकेशन हमें लॉस ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस की बाइस हो सकती है। लोग बात करते हैं तो सही से बात मकसद नहीं समझते। प्रोसीजर का अपनी मर्जी से गलत तरीके से अप्लाई करना और फिर इवेंचुअली कहना कि प्रोसीजर गलत है इज अनदर रीजन। लैक ऑफ एक्सपीरियंस is you can't really help it. If I'm a new person in some other job, I will take time to develop my awareness, वेदर स्पेसिफिक टू आवर फील्ड। वेदर हमारे लिए बड़ी खतरनाक चीज होती है और इसके अंदर हम जल्दी जल्दी और ढेर सारे लिमिटेशन और ऐसे फैक्टर्स के साथ काम कर रहे होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं। एंड फटीग, इवेंचुअली जब एक फ्लाइट के एंड में हम आते हैं, थकावट का शिकार होते हैं, तो हमसे ये प्रॉब्लम्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग इश्यूज होते हैं, हमारी सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं डेवलप होती। दे आर क्रिएटेड बाय, बनती कैसे है, हमेशा से आपको पता है, एक्सपीरियंस होगा तो आप किसी सिचुएशन को अच्छा डिफाइन और अंडरस्टैंड कर सकेंगे। एक्सपेक्टेशंस एंड डिस्कशन, दिस सेशन कुड हैव बीन इजीली वन ऑन वन सेशन। जब तक मैं डिस्कस नहीं करूंगी, मैं इतने वैल्यूड लोगों से इनपुट नहीं लेकर सीख नहीं पाऊंगी, और आपकी वजह से जो मेरे लिए अवेयरनेस और सिचुएशनल अवेयरनेस डेवलप होगी वो मैं नहीं कर पाऊंगी। सो बेसिकली anything which is always a two-way communication ends up in learning for both sender and receiver. Effective communication as we speak and maintained by active monitoring, ये specific है, aviation का बड़ा है, had left it here for the awareness of those who are really keen. Instruments पे बहुत निगाह रखी जाती है कॉकपिट में। कहा जाता है कि अपनी सोच से और अपने तजर्बे से फ्लाई करने के बजाय जो सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पे उसकी मदद से फ्लाई किया जाए। सेंसेस हमारे जो हैं, सुनना, फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट कैबिन में हमें ट्रेन किया जाता है कि कान खुले रखने हैं और सेंस ऑफ स्मेल का बहुत ख्याल रखना है, कहीं आग तो नहीं लग रही। तो हमारे उस पे पूरे पूरे चेकलिस्ट और एक्शन हैं।
ये एक चेकलिस्ट है जो कि पैकस अप के नाम से है। ये हमें बताती है कि हम अपनी लॉस हुई हुई सिचुएशनल अवेयरनेस ऑफ सर्टेन, फॉर एग्जांपल मैं एक महीने की छुट्टी के बाद एक फ्लाइट ऑपरेट करने जाती हूँ, मुझे थोड़ा सा जंग आ जाता है। वो जंग है कि बेसिकली क्या है, that zung is actually loss of situational awareness. So what I need to do in order to recover it, I need to undergo a briefing session with people who are flying while I was away, and then acknowledge the potential problem. Okay, what happened in while I was away? इस एक महीने में क्या हुआ, कुछ नया हुआ? Okay, passengers किस तरह के आ रहे हैं? For example, हमारे लिए हमारी briefing ही change हो जाती है, pre-flight briefing, जब हम UAE से back and forth fly करते हैं ईद के दिनों में। उसमें सबसे पोटेंशियल प्रॉब्लम हमारे पास क्या आता है, कैबिन में बैगेज बेतहाशा आता है, फ्लाइट डिले हो जाती है बैगेज सेटल कराते कराते, क्योंकि हम सर्टेन लिमिटेशन से ज्यादा जगहों पे बैग नहीं रख सकते, फिर हमें ऑफ लोडिंग एंड एवरीथिंग। सो ये हम ब्रीफिंग का हिस्सा रखते हैं, तो सीजनल तौर पे हमारी ब्रीफिंग्स भी चेंज होती हैं, सो दैट नए आने वाले क्रू की सिचुएशनल अवेयरनेस डेवलप हो। देन वी कम्युनिकेट दोस ब्रीफिंग्स एंड गाहे बगाहे हम मेमोज के थ्रू भी करते रहते हैं। हम तमाम इंफॉर्मेशन की सोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो यूज करते हैं। इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, दूसरी एयरलाइंस क्या कर रही हैं, बाहर की एयरलाइंस क्या कर रही हैं, and then we update, and when we come back we discuss, and if there's something which is required to be given as knowledge to others, we send it across to the management, and management shares it with everybody. And in the last, I would request everybody to please इस कोट को पढ़ें, बड़ा पावरफुल कोट है, एफर्ट्स डू नॉट मैटर एनी लॉन्ग व्हेन सिचुएशनल अवेयरनेस इज एब्सेंट। तो ये बहुत जरूरी है कि किसी सिचुएशन में, जब मैंने ये कोट पढ़ा तो मैंने इस नेटफ्लिक्स की सीरीज जो कि मैं आजकल देख रही हूँ दी 100 के नाम से, इससे बहुत रिलेट किया। इस सीरीज के अंदर मुस्तकिल ये दिखाए जा रहे हैं कि कैसे कुछ लोग एक ऐसी नए माहौल में लाके डाल दिए गए हैं जिसकी उन्होंने कभी आदत ही नहीं है उसमें जीने की, तो वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं या कैसे अपनी सिचुएशनल अवेयरनेस डेवलप कर रहे हैं। इसको जरूर देखिएगा, और आई होप आपको आज का ये लेक्चर बहुत अच्छा समझ आया होगा। कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज मुझसे पूछें। ये मेरी थोड़ी सी कॉन्टैक्ट डिटेल है, जरूर आप चाहें तो जरूर देखिएगा। And with this, I would like to close and hand the floor over to Royal Aeronautical Society. Thank you.